and then we have to find out method how to type those genes in the cultivated species, bring them in the background of the cultivated crops. So this is a very Herculean task, very big task is before us, before the biotechnologists and before the builders. This is challenging task again, because the new, as you said, that there are diseases, new pests are coming every day, and we have to encounter them. And that is only possible if we can bring those genes which are resistant, which can cause resistance against those diseases and pests present in the wild taxa. If they can be transferred in our cultivated species, naturally that will be a boon for our agriculture, for the entire humanity, for the entire human race of the land. So this is a big task, and it is only plant breeding and latest biotechnological tools, what you call molecular plant breeding, that can do this kind of task. A number of recent approaches are there in the field of biotechnology. New techniques are coming with the help of those techniques. Now we can taper those genes, we can bring those out, we can transfer them in our cultivated species, so that our cultivated species may resist to those new diseases, new pests, challenges pests posed by new pest techniques. It can be only encountered if we can transfer those genes present in wild taxa, applying a very latest technique of biotechnology in the field of plant. Sarika, Did you follow my question? Thank you, sir. could you get something? Yes, sir. I got it. Very good question. Yes, sir. Very good question. Yes. Very good question. Sir is very happy with all these questions. Yeah. The brilliant questions being asked by second year students. Very good question. Good afternoon, sir. Yeah, Ansu, you are from where? I am from Giridih, Jharkhand. Huh? Giridih, Jharkhand. Yeah, And Ansu. Studying in which? Yes, yes, second year. Here are Barkacha. Yes, second year. Okay, question. Yes, sir. पूछो. सर मैं आपसे बस एक मतलब आपसे मैं एक ऐसा स्टोरी सुनना चाहता हूँ जिसमें आप मतलब ये एक्सपेक्ट किए थे कि आपको प्लांट ब्रीडिंग के केस में सक्सेस मिलेगा, लेकिन आपने बहुत मेहनत किया, फिर हो सका वो मतलब ऐसा हुआ कि आपको ऐसा एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं मिला. ऐसा हुआ है क्या? बहुत ऐसा बहुत होता है बेटा. ऐसा तो होना ही चाहिए. अच्छा, कुछ मेजर उसको बताएंगे. ऐसा क्या प्रॉब्लम है संसार में? ऐसा व्यक्ति कौन है जो उसने एम किया और मिल गया? सब कुछ. क्या मिल जा सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? असंभव है. It is impossible to imagine that you thought this thing and you got it. No. You cannot get the things according to your expectations every time. But your effort or endeavor should be of first degree, so that you can pursue continuously. Perseverance is very important issue in life, and that pays dividend. This is my what called experience. That if you continue pursue, and if your effort is continuous and in right direction, with right approach and with right articles, one day you will certainly succeed, and you will succeed in your mission. ठीक है? अंशु, Are you satisfied? यस सर. ओके. कुछ आवाज गई कि नहीं गई आवाज? मेरी आवाज पहुंच रही आप तक? सर आवाज क्लियर नहीं आ रही थी, लेकिन क्लियर नहीं आ रही थी ना? हाँ, थोड़ा तेज बोलना होगा सर को लगता है. बहुत लेट कर रहा था आवाज. हैं? बहुत ब्रेक करो. ब्रेक कर रहा था. अच्छा. आवाज थोड़ा सर को तेज बोलना होगा हमें लगता है. चलिए. हाँ.
I will speak faster. Louder. या लाउडर, लिटिल लाउडर. ऑडिबल नहीं है आपसे. हाँ बिल्कुल नहीं, वो नेटवर्क इशू है, वो सम नेटवर्क इशू इज देयर. बिल्कुल आदर्श, बिल्कुल आवाज नहीं गया है. You lost your network. लिखा. हाँ बीच बीच में नेटवर्क गायब हो रहा है. सर अभी बिल्कुल नहीं है जो आप बोल रहे थे. सर की कोई आवाज नहीं गई जो सर बोले. अभी आया है. You lost your network. अभी आया है. सर आवाज काफी ब्रेक हो रही है सर, अभी वीडियो भी पॉज हो गया है. हाँ 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 हाँ, वो नेटवर्क इशू है, सब पुअर नेटवर्क इज देयर. You lost your network connection trying to reconnect. हाँ हाँ. ये सब प्रॉब्लम आती है भाई. क्या इंडिया में अभी हम लोग इतना इंटरनेट के लिए इतना सक्षम नहीं है. वी आर नॉट कॉम्पिटेंट इनफ टू कैरी ऑन दिस नेटवर्क वर्क. नेटवर्क बेटा नेटवर्क इशू आ रहा है. वी आर फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम. वी आर फेसिंग नेटवर्क प्रॉब्लम. ज्योति, ज्योति अब आवाज हम लोग जा रही है क्योंकि वो नेटवर्क प्रॉब्लम था इसलिए आवाज नहीं गया. सर अभी आ रहा है. अभी सर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि फिर से बोल दें उसके प्रश्न का उत्तर. हाँ हाँ सर, आप थोड़ा सा एक बार फिर रिपीट कर दें. वो नेटवर्क इशू था. Your question was that whether you succeeded in every object that you aimed it in life. No, it is impossible. Nobody in life, nobody can say that I got everything what I desired. Can anybody say on this earth say that I desired to go on the moon and I went there? It is impossible to have. Same way, it happens in life. One way, one step forward and two step back. It happens in the life of individuals, in the life of the institutions, in the life of the nations. This is the law of nature. एक पग आगे फिर दो पग पीछे, ये सिद्धांत है प्रकृति का. इसको कोई चेंज नहीं कर सकता. बट आवर परसिवरेंस शुड बी कंटिन्यूअस. इट शुड बी सस्टेन्ड. उसमें कोई लकना नहीं होना चाहिए. हाँ, जिसको मैंने एम किया बहुत सी चीज़ें मिल गई. बहुत से काम हम लोगों ने शुरू किया, उसमें बहुत 99% तक सफलता मिल ही गई. लेकिन उसके पीछे लगातार प्रयास, कंटिन्यूअस एफर्ट रहा. अंशु अब आवाज गई कि नहीं? यस सर. अभी ठीक गया? Yes, sir. Could you get answer? यस सर. थैंक यू सर. ओके ओके. आदर्श? यस सर. हाँ अभी आवाज गई? बिल्कुल सर, आ रही है. दैट्स गुड. चलो प्रश्न कुछ और करो. सर हेलो सर. हाँ बेटा बोलिए. सर मैंने फिर अपना वो बोलते हैं वाइट ब्रिंजल की वैरायटी और पर्पल ब्रिंजल की वैरायटी का क्रॉस कराया था इमेस्कुलेशन के थ्रू. विवेक बोल रहे हो? विवेक कहाँ से बोल रहे हो? सर बनारस. बनारस. हाँ विवेक बोलो. क्या कराई थे आप क्रॉस? हाँ बिटवीन किसके किसके बीच में? पर्पल. हेलो. पर्पल. हाँ सर हमारा हाँ हाँ बोलो. पर्पल वैरायटी ऑफ ब्रिंजल और वाइट वैरायटी ऑफ ब्रिंजल दिया था. उसका क्रॉस कराया इस इमेस्कुलेशन के थ्रू. सारा मैंने जैसा प्रोसीजर बताया था आपने वीडियो में वैसा किया. हाँ. फिर भी मुझे रिजल्ट एक भी नहीं मिला. या कौन नहीं मिला? सीढ़ी नहीं मिला. सीड नहीं बना. तो नहीं मिला. अरे सीड नहीं मिला. कोई न कोई प्रॉब्लम. सुनो, इमेस्कुलेशन से पॉलिनेशन के बीच और राइट टाइप का बर्ड चुनने की इतनी प्रॉब्लम आ सकती है. किस तरह की बर्ड चुना, उस समय पोजीशन स्टिग्मा की क्या थी. सुनो भाई, सुनो. पहले उसको स्टडी करो. पहले जो पहले से लोग किए हैं उसको जान लो. रेफरेंसेस किस तरह की बर्ड लेना चाहिए ब्रिंजल में, कितनी देर तक उसमें कब आता है रिसेप्टिविटी स्टिग्मा की,
और वो कितने दिन तक रहती है मेंटेन, कितने देर तक, फ्लोरल बायोलॉजी, किस समय वो रिसेप्टिव होता है, टाइम दिन के किस समय में, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग के दैट बीच। इज फ्लोरल बायोलॉजी है। फिर जो है पॉलन ग्रेन कितना दिन तक रह सकता है, पॉलन ग्रेन का डेhiscence होने के बाद पॉलन कितनी देर तक सर्वाइव करता है, और फिर पॉलिनेशन करने का क्या टेक्निक है, इतना चीज़ें। और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव था तब पॉलन उसको गया कि नहीं, अगर इतना चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, और फिर पॉलिनेशन ठीक से किया कि नहीं, किसी तरह की इंजरी हुई कि नहीं, कोई इंजरी तो नहीं हो गई उस बट को पॉलिनेशन करते समय स्टिग्मा को, या एमस्कुलेशन करते समय। अगर ये सब प्रिकॉशन लिया गया तो सफलता जरूर मिलेगी। और उसमें तो फ्लावर बहुत बड़ा होता है, उसमें तो मिलना चाहिए था, बट उसमें फ्लावर बनना चाहिए था, फ्रूट। विवेक, देयर इज सम प्रॉब्लम, एनी ऑफ दिस प्रॉब्लम। विवेक, आप इस चीज़ को ध्यान दो, Yes, जो sir. ऑलरेडी लोगों ने किया है ब्रिंजल में, और जो उसकी बायोलॉजी स्टडी की गई है, ये सब पॉइंट पर जितना मैंने बताया उसको देख करके ही आपको करनी चाहिए। लेट मी आंसर यू विवेक इन वेरी शॉर्ट। विवेक सुनो सुनो सुनो, तुमने बगैर फ्लोरल बायोलॉजी जाने तुम स्टार्ट कर दिए। हमने ये कहा कि अगर एक क्रॉप में तुमने देख लिया हिमेस्कुलेशन पॉलिनेशन, तुम किसी भी क्रॉप में कर सकते हो, बशर्ते उस क्रॉप का फ्लोरल बायोलॉजी जानो। बगैर फ्लोरल बायोलॉजी के थोड़ा कर पाओगे तुम, जो सर ने अभी बताया सारा चीज, दैट इज ऑल फ्लोरल बायोलॉजी। आर यू गेटिंग मी विवेक? फ्लोरल बायोलॉजी के बगैर नहीं कर सकते हो। आप जैसे फूल, हर क्रॉप का फ्लोरल बायोलॉजी अलग है। मैंने बट की साइज क्या होना चाहिए, ये फ्लोरल बायोलॉजी सुनो क्या होता है। यस, सुनो सुन लो। फ्लोरल बायोलॉजी में बट की साइज क्या होना चाहिए Yes. जब पॉलिनेशन के लिए। फिर आपकी जब आप इमेस्कुलेशन करते हैं तो सारे एंथर निकालते समय किसी तरह की इंजरी नहीं होना चाहिए, बहुत प्रिकॉशन लेना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि वह बड में जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव कब होता है, मॉर्निंग से इवनिंग के बीच, उसका टाइमिंग क्या है, और वो कितने देर तक रिसेप्टिव रहता है, जिससे वो पॉलन ग्रेन एक्सेप्ट कर सके और पॉलन उस पर जर्मिनेट कर सके। अब आओ पॉलिनेशन, पॉलन ग्रेन कैसा रहा, पॉलन ग्रेन कितने वायबल था कि डेड पॉलन ग्रेन था, कितनी देर बाद उसको किया गया, पॉलिनेशन के लिए आप कौन सा चीज़ यूज किए, इक्विपमेंट ब्रश था, क्या चीज़ थी, उसको आपने कैसे किया। अब उसके बाद पॉलन को इमेस्कुलेटेड बड को आपने फिर कवर किया होगा, बाहर से नहीं है, उस समय इंजरी के चांस भी होते हैं। तो इतने पॉइंट को अगर ध्यान में रखा जाए तो 100% सफलता मिलेगी। आपके यहाँ 0% मिली, इसका मैंने कहीं न कहीं मिस्टेक हुई है। विवेक, अब तुम्हें अंदाज लग रहा है कि तुमने क्या गलती की है? थोड़ा हम लोगों को बता भी दो गलती अपनी। कहीं न कहीं सर, प्रॉब्लम मेरे ख्याल से मैंने पॉलन की वायबिलिटी को नहीं जाना है और चलो चलो ठीक है, आगे से देख लेना। इट इज द सिंपलेस्ट डूइंग हाइब्रिडाइजेशन इन ब्रिंजल। क्या सर? सिंपलेस्ट है बेटा, सिंपलेस्ट है, कुछ करना ही नहीं, साइज बहुत बड़ी है। इसलिए उसमें चिंता मत करो, यू विल गेट इट। फ्लोरल बायोलॉजी देख लेना, उसमें कब इंथेसिस होता है, पॉलन कब कितना देर तक वायबल होता है, ये सारा चीज देख लो, उससे उसको एडजस्ट करो टाइमिंग, रिसेप्टिविटी ऑफ द स्टिग्मा, ये एडजस्ट करो अपनी उसी तरह से। इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन टाइमिंग तभी उसके बाद तभी करोगे। हम तो इमेस्कुलेशन कैसे करना है ये बता सकते हैं, पॉलिनेशन कैसे करना है ये बता सकते हैं, लेकिन टाइमिंग ऑफ इमेस्कुलेशन एंड पॉलिनेशन ये सारा जो है इट विल वेरी क्रॉप टू क्रॉप, तो यू हैव टू डू लाइक दैट। ठीक है ना? Yes. Sir, now I have a question, sir. हाँ, दीपांजन रक्षित, you are from Kolkata? No, sir. Delhi. Delhi, okay. क्वेश्चन। Sir, now I have a question, sir. Sir, as you have told us, sir, with experience, sir, we in genetics, sir, we find out many things, sir. In that respect, I want to say that, sir, in genetics,
we develop a new variety, sir, but there are sir many restrictions like polar non-variability, sir, sterility, depression, environmental resistance, sir. For these we cannot get an appropriate yield, sir. Then, sir, our whole experiment, sir, will due to such exceptions, sir, will fail. So, sir, how does a breeder then think differently in such cases? When you say that there are number of hurdles in breeding, How will we go to sir, another appropriate measure, sir, to develop his target? see your question, I can guess what you want to ask. You are asking that there are number of hurdles in pursuing plant breeding programs. Is it so? You are discussing about the hurdles, about the plant breeding program, how those hurdles can be circumvented. This is another problem. So what are those problems which we have to first note down? Problem number 1, 2, 3, 4, 5. And then what are the ways how to circumvent those problems, solution of those problems. These two things are there. Number 1, you have to deal with the problems, you have to discuss the problem, you have to point out the problem, you have to bring them an exposure that these are the problems, and then what are the various probable solution of those problems. Then you will be able to solve those problems. Since your question is very much random, and therefore my reply is also very random. Okay? If you be specific, then there will be very specific. Rakshit, you have to be very, very specific with your question. If you be specific, then only can be answered specifically. Otherwise, this is general answer. Could you get? Yes, sir. ठीक है, और कुछ पूछना है? रक्षित, कुछ और चाहते हो पूछना? सर हाँ बोलिए। हेलो हाँ बोलिए बेटा। कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है? अभी कौन बोल रहा है? सर अंशुमन त्रिपाठी फ्रॉम वेयर? जौनपुर। स्टूडेंट ऑफ BSc is BHU? बीएचयू से? यस सर मेन कैंपस या वहाँ बरकछा? मेन कैंपस। सर मेन कैंपस। कहाँ से अभी कहाँ से लिंक किए हो अपने को? जौनपुर ना? हेलो जौनपुर में कहाँ से? You are from Jaunpur, I think. सर Which yes sir I'm from Jaunpur. which place जौनपुर? It सर is जौनपुर शाहगंज। चलो ठीक है, प्रश्न करो आप शाहगंज से। हाँ question. सर भारत सर प्लांट ब्रीडिंग को इन्वायरमेंट के वेलफेयर के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? इसके लिए प्लांट ब्रीडिंग Enva- सर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली वेलफेयर के लिए कैसे welfare. Oh, yes, very good. Plant breeding how can be Plant used? breeding is the only science which is environmental friendly, eco-friendly. Entire approach is eco-friendly. It is not going to harm any way to our environment. Our entire methodology, procedure, the techniques which are being used only confined to the conventional process, which are no way harmful to the environment. It is the only science which is highly eco-friendly. So he is asking how breeding is helpful to environment. Acha, this question? Yeah. Acha, your breeding, see that previously people used a lot of chemicals to check the disease, to check the pathogens, to check the pest, to check the various kinds of environmental hazards. Nowadays, you know, Nodin 10 gene, various dwarfing gene wheat. So in case of Digiugen gene, in case of rice, these genes have helped farmers in gaining the maximum output, what you call in terms of seed yield, with limited, you can say, minimum application of the inputs. This is the biggest gain.
they are not going to use much fertilizer, limited fertilizer, limited resources, limited water, we can extract plant breeding. Nowadays we have methods of breeding where we are confining our attention to use minimum water, minimum fertilizer, minimum inputs to get maximum yield. This is the motto of plant breeding nowadays. This is a recent approach of plant breeding that we have with limited resource, with limited inputs, how we can get maximum harvest. And this task can only be done by plant breeders. No science can substitute plant breeding work. अगर एरोबिक राइस की बात करें वैसे, Arabic rice, they talk about aerobic rice. If it happens that everybody is growing aerobic rice, what will happen? Large quantity of this water you are saving, isn't it? saving water without only just like irrigate, only just like wheat Wheat. or other crops. So You that also will be irrigate beautiful. A lot of saving of water. So we are saving the environmental components. Is it okay बेटा? अंशुमन ठीक है ये? चलिए नेक्स्ट, एनीबॉडी नेक्स्ट? Good question. अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छा नहीं, best question. बेस्ट क्वेश्चन, यस It's a very good question. यस, I am happy to listen this question. या नेक्स्ट राजशेखर, हितांशु, गिरजेश, बहुत से बच्चे इसके पीछे होंगे ना, हाँ पीछे भी। जिनका यहाँ नहीं। हाँ हाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे लोग हैं। इधर भी मैं कर दूं एक मिनट। So बेटा, should we close now? Sir, can I ask one last question, sir? Rakshit, yeah. Sir, for being a good plant breeder, sir, a person needs, sir, needs to be a master machine, sir, genetics also, genetic speed also. Without understanding the genetics, Breeding is application of genetics. at heart you cannot, whatever you are doing, just like a farmer, he apply also fertilizers, but he does not know how fertilizer is useful to the plants. Yeah. But if he knows the plant physiology, if he knows the agronomy, science of use of fertilizers, how fertilizer is being utilized by the plants, absorption of the solutes, absorption of the nutrition, value of the different what you call ingredients, how they are used, how the plants extract those nutrients separately. It is scientifically, if he knows science, but farmer doesn't know all these things, but they also use it. Agronomists also do the same job. What is the difference between agronomist and farmer? Agronomist knows that this is the impact of this particular component of the fertilizer on the plants. And farmer does not know it, but he uses it, and same result gets. But if he knows the science, then he will be better agriculturist. He will be the best farmer if he knows the science. A person, he was the principal of UP College earlier, long back. His son studied in MSc in agriculture in USA and started his farm in Nagoda. And he became a farmer. He did MSc in agriculture and he became a farmer in India. He took degree from USA. It means that there is different use of this degree in agriculture for doing good agriculture, or best agriculture. Is it okay, Rakshit? Yes, sir. Thank you, sir. Okay. सर हाँ बेटा, पूछिए, सर बोलिए, कौन बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है बेटा? सर अंशुमान। हाँ अंशुमान बोलो, यस, जौनपुर से, हाँ। जैसे कुछ प्लांट्स होते हैं जो
जो नेचुरल प्योरीफायर होते हैं एयर के, जैसे हाँ, बहुत से plant हैं। हो गया अरे तुम्हारा तुलसी है। तो सर क्या हम उस कैरेक्टर को और भी प्लांट्स में नहीं कर सकते जो ऐसा उससे भी ज़्यादा है काम है? या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। A day will come when we shall think about those things also, so that our plants may give height along with they can remove the pollutants from the environment. And this is the task to be given to Anshuman Tripathi. Then later on, you will be the ringleader of that particular battalion Yes. who will lead to this kind of work in India. Sir, or abroad. sir says that this is possible, Why not? but will be done by your generation. Are you accepting the challenges? यस सर। सभी लोग कर रहे हैं challenges को accept? खुशी, निधि Yes, sir. कर रहे हैं कि आपको करना है बहुत कुछ? Yes, sir. करना है ना? Yes, sir. Yes, that's good, wonderful. और पूछिए। हाँ बोलिए बेटा। सर इंडिया में स्मॉल और मार्जिनल फार्मर का परसेंटेज सर लैंड होल्डिंग के हिसाब से कम है तो ज़्यादा है, मतलब 70% के हिसाब से मतलब पाए जाते हैं, तो इनका इनकम किसी प्रकार से बढ़ सकता है क्या? श्योर। हमारा जितना एफर्ट है प्लांट ब्रीडिंग एग्रीकल्चर का, वो किसानों की इनकम को बढ़ाने का ही प्रयास है, लेकिन उनकी होल्डिंग इतनी छोटी है कि उस पर जो है हम न्यू साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो देंगे उसको वो सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसको झेल नहीं पाएंगे, सस्टेन नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारी यह गुजारिश है कि ऐसे किसान केवल एग्रीकल्चर पर डिपेंड ना करके साइड वर्क में जो इनकम का नेक्स्ट सोर्स हो, अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ इनकम related to the agriculture, they should opt other business also, other kinds of enterprises they can start. Maybe Along with agriculture based. agricultural based enterprises they can start, and then their income will be increased. Maybe fisheries, beekeeping and other things, goatry, Thousands of them. so many things. So they have to do like that. So day to day income may increase. Girjesh, is it okay? Good question. अच्छा question. आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? It's a good question. You are asking very good question. So खुशी और बढ़ाइए। बंद करें अब? नहीं, मौका दीजिए अभी और मौका दें? और नए लड़कों को। खुशी अब आगे से याद रखना, बरकचा वालों को भी लिंक भेजोगी, ठीक है? तानिया, Yes, sir. Yes, sir. हाँ भूलना नहीं, कैसे भूल गई पता नहीं। Yes, sir. Yes, sir. हाँ ऐसे उनका नाम है। ये लोग, हाँ हाँ विवेक, संदीप, सौमदीप तो पूछा है। हाँ, आदर्श, बहुत ज्योति चौधरी, Yes, sir. बेटा कहाँ से हो आप? जयपुर, राजस्थान. जयपुर। ग्रेजुएट स्टूडेंट। हैं? जयपुर या उदयपुर? जयपुर, sir. जयपुर। यू आर फ्रॉम बरकचा इन मेन Main कैंपस? campus. मेन कैंपस। पूछो, सो ज्योति तुमको नहीं कुछ पूछना है? पूछेगी। नहीं, sir. तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है जयपुर में? नहीं, sir. कोई problem नहीं. ब्रीडिंग से कुछ करना नहीं है जयपुर में, या राजस्थान में कुछ करना नहीं है? राजस्थान What is the major problem in Rajasthan and how you are going to handle? Problem the water scarcity is serious. ज्योति, Yes, sir. अब सर को बताना, अब तुम नहीं पूछोगे सर पूछेंगे। हाँ भाई, बताओ अपने राजस्थान का प्रॉब्लम बताओ। सबसे बड़ी प्रॉब्लम और ब्रीडर्स के लिए क्या चैलेंजेस हैं राजस्थान में? अगर वाटर मिल जाए तो राजस्थान पूरे इंडिया को खिला सकता है। Actually, मैं राजस्थान में born हूँ, रहती हूँ. हैं? काफी कुछ idea नहीं है. क्या? कहाँ रहती हो तुम? कहाँ रहती हो? महाराष्ट्र में रहती हूँ. हैं? कहाँ? महाराष्ट्र बोला. अच्छा महाराष्ट्र में कहाँ पे? राजस्थान को पढ़ के भी जान सकते हो। महाराष्ट्र में कहाँ से? सोलापुर. हैं? सोलापुर। सोलापुर. तो अभी तुम सोलापुर से लिंक की हो अपने को या जयपुर से? सोलापुर से. सोलापुर से?
Very good. You are from Solapur? अभी Sir, actually I am from No, no. नहीं, This time you are अभी तुम कहाँ पे हो? Maharashtra. Solapur. अरे भाई महाराष्ट्र, सोलापुर बोलो ना। सोलापुर की क्या विशेषता है? कोल्हापुरी Kolhapur और Solapur दो different places है. Kolhapur is different, Solapur is different. Yeah. So you are from Solapur. Kolhapur. कोल्हापुर। Kolhapur. ओके ओके। Why Kolhapur is famous? Kolhapur is famous for Mahalakshmi temple. महालक्ष्मी। Temple. अच्छा। And then second, one of the important thing linked with Kolhapur. Maharaj Chhatrapati Shivaji mostly ruled Kolhapur. He was there for a long time. And Kolhapur is famous for sugarcane cultivation. Yes, sir. Yeah, sugarcane, many mills are there, sugarcane mill. And sugarcane is very famous in Kolhapur district. शुगर केन में ब्रीडिंग कैसे करते हैं ये ज्योति? नहीं देखो. तो कोल्हापुर में शुगर केन नहीं होता है? पढ़ी नहीं. नहीं। सर एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए कुछ आइडिया नहीं. सुगरकेन का क्या? विचार. हैं? बड़े बड़े लोगों को सुगरकेन ब्रीडिंग नहीं पता हो. नहीं वो एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट नहीं। सुने हैं आप? मुझसे पूछे क्या? ज्योति फिर से बोलो, क्या बोली हो? अरे एग्रीकल्चर में कोई इंटरेस्ट नहीं. देख रहे हैं ना, उसको मेडिकल क्यों पढ़ रहे हैं भाई? मतलब इतना तुमने वो प्लान मीटिंग, हमारा प्लान मीटिंग का वो क्या हमने बताया था, क्या हमारा एक टॉपिक था प्लान मीटिंग का एडवांटेज है क्या, ऐसे हमने एक टॉपिक हमारा है, उसको नहीं देखा है? फ्रंटियर्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. ज्योति जल्दी जल्दी बोलो। व्हाट आर द फ्रंटियर्स ऑफ हैं? प्लांट ब्रीडिंग? न्यू फ्रंटियर्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग. तुम मेडिसिन पढ़ती हो, मेडिकल में जाना चाहती थी क्या? हाँ सर. मेडिकल से अच्छा है तो हमारा ये subject- अभी तक समझ में नहीं आ रहा। मेडिकल से अच्छा मेडिकल है में तो बहुत टफ जेनेटिक्स कंपटीशन प्लान है. ब्रीडिंग। सुनिए, बहुत टफ कंपटीशन है, वहाँ सर्वाइवल दिक्कत है. अगर वही इंटरेस्ट तो जगाया जा रहा है कि इंटरेस्ट जगे तुम लोगों में। अरे तुम्हारा भ्रम दूर हो गया. अपने टैलेंट को बर्बाद मत करो तुम लोग। ऐसा कभी मत करो. हमारा कोई भी ऐसा क्लास नहीं चलता है विच इज नॉट लाइक प्रैक्टिकल। समझ गए ज्योति? लगता नहीं Now है? you love agriculture. यस। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली ऑनलाइन स्टडीज ठीक है हाँ, पर इतना इंटरेस्ट नहीं आता जितना ऑफलाइन होता है. हाँ, वो तो हमारी, वो तो क्या बताएं. हाँ दैट इज ट्रू, सीरियस प्रॉब्लम. दैट इज ट्रू। वो तो ट्रू. चलो जल्दी आओगे तुम लोग, भगवान चाहेंगे तो जल्दी आओगे। बुलाना चाहिए यूनिवर्सिटी को. क्यों? कब खुलेगा सर? कब खुलेगा? सब जगह खोल दो. जल्दी 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 क्यों नहीं खोला? जल्दी होगा। हैव पेशेंस, जल्दी होगा। हैव फेथ, होगा। आओगे तुम लोग। सर एडमिशन से सुन रहे सर, जल्दी होगा सर, 1 साल हो गया. अब क्या कहा है? नहीं, एडमिशन तो हो रहा है। नहीं, अभी तो एडमिशन प्रोसेस तो हो गया है, तो एडवर्टाइज भी हो गया है। एडवर्टाइज तो हो गया है, अब तो नेक्स्ट सेशन ना, एप्लीकेशन आ न्यू सेशन ना। न्यू एडमिशन की बात कर रहे हो? फिर फॉर्म आया हुआ है, अभी पेपर में हुआ है. फॉर्म आएगा सर. हाँ तो अब हो जाएगा जल्दी। अब अच्छा, आप लोगों का तो एंट्रेंस नेक्स्ट टेस्ट इंट्रेंस की बात कर रहे हैं, हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। अब बेटा क्या करोगे, कोरोना के चलते सारा प्रॉब्लम हो गया। नहीं यार, कल यूनिवर्सिटी बहुत स्लो है. तो वर्ल्ड वाइड है सर, इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड नहीं वर्ल्ड है. वाइड है. हाँ है तो वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम भी तो है, कहाँ खाली ऐसा नहीं है। नहीं, खोल देना चाहिए यूनिवर्सिटी. खुल रहा है तो खुल ही रहा है, धीरे धीरे खुल रहा है। डिले कर रहा है. हैव फेथ, हैव पेशेंस, हो जाएगा, जल्दी होगा। और बताओ क्वेश्चन. वैष्णवी ज्वाइन की अभी।
क्वेश्चंस ऑफ आवर स्टूडेंट्स। बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे। हाँ सर। बोलिए वैष्णवी। सर मेरा रश्मि। क्वेश्चन ये है कि अभी जिस तरह ऑनलाइन स्टडीज चल रही है तो इसमें हमें जेनेटिक्स को कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी ऑनलाइन काफ़ी नया है सबके लिए, तो पढ़ने में काफ़ी मुश्किल हो रही है। ठीक है, अब तो ऑनलाइन ख़त्म कर रहे हैं, ऑफलाइन हो जाएगा, जल्दी। जल्दी हो जाएगा। अब ऑनलाइन का हाँ ऑनलाइन से लड़कों को समझ बात नहीं आती ठीक से। ऑनलाइन टीचिंग 25% ही इफेक्टिव है, केवल 20% इफेक्टिव होती है। हो जाएगा बेटा, जल्दी। पेपर के लिए इम्पोर्टेंट होता है, ऑनलाइन से समझ में बहुत हाँ बेटा, हाँ समझ में भी दिक्कत आती है। हाँ हाँ काफी स्पीड से, मतलब सर 2 मंथ में हमारे एक सेमेस्टर को फिनिश कर दिया गया। तो प्रीवियसली सर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर गया है। हाँ हाँ, प्रॉब्लम तो है। होगा बेटा, जल्दी होगा। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। या सो बेटा, शुड वी क्लोज नाउ? सारिका, आदर्श, ये सर is it okay now? यस सर। Good. So we all should thank Congratulate you is for your sir is wonderful congratulating all of you. for wonderful Is very interaction. happy with the interaction. I am very happy with your standard of question. Yeah. So I'm thankful to sir that he has accepted my request to bless you all. So I'm also blessed to get him here today. ये कहते हुए मैं सर को थैंक्स देता हूँ और क्लोज करता हूँ। आप लोगों का भी धन्यवाद सर को मिलना चाहिए। सो आई एम गोइंग टू क्लोज नाउ। धन्यवाद, हम रेसिप्रोकेट करते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you, sir. सर आप ऐसे आशीर्वाद Thank दीजिए you, sir. बच्चों। Reciprocated already. Thank you, sir. Yes. Okay बेटा, all the best. अच्छे से पूछे सवाल। अच्छा रहा सर, बहुत अच्छे नाइस। से फुल कलर में था। Yes, yes, it was nice. It was nice interaction sir. Thank you sir very much. आपने पूरा समय दिया सर। आप हम थोड़ा सा हाथ धो लें Enjoy किया। और हाथ धो के इसको आप थोड़ा सा। Enjoy किया मैंने क्वेश्चन को, हैं? हाँ, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा रहा। Thank you so much sir.